اتنا نازک مسئلہ ہے. میں 2 مسئلے یہاں میں بتاؤں گا, اس کو آپ غور سے سنیں اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. پہلی یہ کہ جو شخص کہتا ہے میں سید ہوں, شریعت نے ہم پر لازم نہیں کیا کہ ہم اس سے پوچھیں کہ اپنا نسب نامہ ثابت کر, اپنا سجرہ لاؤ, ہمیں حق نہیں ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے, سرکار فرماتے ہیں لوگ اپنے نسب پر امین ہیں, تمہیں کوئی ضرورت نہیں کہ تم کسی کے نسب کی جو ہے چھان بین کرو, ہمیں حکم نہیں دیا گیا. عموماً ہم کہہ رہے تھے ارے وہ بولا اپنے آپ کو سید بنتا پھرتا ہے, کائے کا سید ہے. یہ بہت بڑی جرات ہے. ابھی کتنی بڑی جرات ہے میں ایک واقعے کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں جس کو متعدد علماء نے لکھا ہے. خلافت عباسی کا جب زوال ہوا تو بہت سارے سادات کو قتل کیا گیا, چن چن کے سیدوں کو مارا جاتا تھا. جہاں پتہ چل جاتا کہ یہ آل رسول ہے, انہیں اندیشہ ہوتا کہ کہیں یہ حکومت کے دعوے دار نہ بن جائے, قتل کیا جاتا. نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے سادات جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے. انہی سیدوں میں 2 ننھے بچے ہیں جو یتیم ہو جاتے ہیں, ان کے ماں اور باپ کو قتل کر دیا گیا. یہ 2 بھائی 2 یتیم بچے اپنی جان بچا کے بھاگتے ہیں. بغداد سے نکل کر یہ کسی محفوظ مقام کی طرف سفر کر رہے ہیں. حال یہ ہوتا ہے کہ جب بچے راستے میں چلتے ہیں, پاؤں میں جوتے نہیں ہیں, پاؤں میں کوئی پہننے کی چیز نہیں ہے, پیروں میں آبلے آ جاتے ہیں, آبلے پھوٹتے ہیں, ریت اس میں داخل ہوتی ہے, زخم آتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے. اور جب تکلیف ناقابل برداشت ہو جاتی ہے تو بچے بیٹھتے ہیں, پھر رونے لگتے ہیں, پھر بڑی مشکل سے اٹھتے ہیں, پھر سفر کرتے ہیں. بڑی مشکل اور جدوجہد سے سفر کرتے رہے, یہاں تک کہ ایک شہر میں داخل ہوئے. دوپہر کا وقت تھا. چھوٹے بھائی اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے بھائی جان ہم بھوک سے پریشان ہو گئے, کئی دن گزر گئے کہ فاقے کر رہے ہیں, اب چلنا دوبھر ہے, آگے بڑھنا مشکل ہے. بھائی جان کسی گھر کے سائے میں جہاں چھاؤ ہو وہاں پر ہم کچھ دیر سستاتے ہیں, آرام کر لیتے ہیں. بڑے بھائی نے مشورہ پسند کیا. ایک حویلی نظر آئی جو بڑے امیر زادے کی حویلی تھی, وہاں کچھ سایہ تھا, دیوار سے ٹیک لگا کے دونوں شہزادے بیٹھ گئے. چھوٹے بھائی کے پیر میں ریت گھس گئی تھی, جہاں آبلے پڑ گئے تھے پیپ بھر گیا تھا, اس میں ریت داخل ہو گئی. بڑا بھائی جب ریت نکالنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں زخم نہ ہو جائے, ناسور نہ بن جائے, تو درد و کرب سے چھوٹا بھائی رونے لگتا ہے. جب رونے کی آواز حویلی کے اندر پہنچی, حویلی کا امیر کبیر سیٹھ جو ایک مسلمان تھا وہ سو رہا تھا, نیند میں خلل ہوا, بیدار ہوا, باہر نکلا, دیکھا 2 شہزادے رو رہے ہیں. کہا کیا معاملہ ہے, کون ہو, کیوں رو رہے ہو؟ دوپہر کا وقت ہے, میں تھکا ماندہ کام سے آیا, قیلولہ کر رہا ہوں, سو رہا ہوں, کمبخت سونے نہیں دیتے, کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو, یہاں کیوں بیٹھے ہو یہاں؟ بہت سختی سے اس نے جھڑکا. بڑا بھائی کہتا ہے کہ کیا آپ مسلمان ہیں؟ کہا ہاں میں مسلمان ہوں. کہا مسلمان ہیں تو سنیے, ہم آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے, ہم سادات ہیں, ہمارے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا, ہم یتیم ہو گئے, ہم کسی محفوظ مقام کی طرف سفر کر رہے ہیں کہ کسی محفوظ مقام پر جائیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی ظالم قتل کر دے. یہ میرا بھائی ہے, اس کے پیر میں آبلے آ گئے ہیں, ریت داخل ہو گئی ہے, تڑپ رہا ہے, یہ رو رہا ہے, آپ اللہ ہم پہ رحم کھائے, ہمیں کچھ دیر یہاں بیٹھنے دیں, اس کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے. اور بدبخت نے بڑی سختی سے کہا چلو اٹھو, آل رسول ہے تو کیا ہو گیا, آل رسول ہو گئے تو کیا یہ حویلی خرید لیا ہے تم نے, اٹھو یہاں سے. بہت آتے ہیں ایسے لوگ, اپنے آپ کو سید کہتے ہیں, اپنے آپ کے آل رسول بتاتے ہیں تاکہ لوگ ان کا احترام کرے, چلو بھاگو, کائے کے سید ہو؟ انہوں نے کہا آپ یقین کیجیے اللہ کی قسم کھا کے ہم کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے خاندان سے. کہا اچھا خاندان سے تو بتاؤ تمہارا سجرہ کہاں ہے, سند ہے تمہارے پاس اس کی, کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم آل رسول ہو؟ بچوں نے سنا تو خاموش ہو گئے. اب کہاں سے اسکول آ کے سند دیتے, کون سا سجرہ اس کو پیش کرتے؟ دونوں بچے اٹھتے ہیں, بڑی مشکل سے اٹھنا ہوتا ہے. چھوٹے بھائی سے اٹھنا نہیں ہوا, بڑے بھائی نے اس کو کاندھے پہ لیا اور خود بھی درد سے پریشان ہے, اسی درد و کرب کے ساتھ وہاں سے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ مایوسی کے عالم میں نکلتے ہیں. کچھ دور جانے کے بعد ایک یہودی کی حویلی نظر آتی ہے, وہاں بھی کچھ سایہ تھا, سورج حویلی کے پیچھے چھپا ہوا تھا, اس سائے میں یہ لوگ بیٹھ گئے. چھوٹے بھائی نے درد کی وجہ سے پھر رونا شروع کیا. معاملہ یہاں بھی تھا کہ وہ یہودی سو رہا تھا, آواز کان میں پہنچی, نیند میں خلل واقع ہوا. یہودی باہر آتا ہے, آنے کے بعد دیکھا کہ 2 بچے بیٹھے ہیں رو رہے ہیں. یہودی پوچھتا ہے بچوں کیوں رو رہے ہو, میری نیند میں کیوں خلل واقع کیا تم نے؟ بچوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں, ہمارے ساتھ بہت بڑا سلوک ہوا, ایک بڑا عظیم حادثہ ہمارے ساتھ رونما ہوا, ہمارے والدین ماں باپ قتل کر دیے گئے, ہم یتیم بچے ہیں, ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں, ہم کچھ دیر بیٹھیں گے چلے جائیں گے. یہودی نے کہا اچھا تم یتیم ہو, ٹھیک ہے بیٹھو کوئی حرج نہیں, لیکن رونا مت تاکہ میری نیند میں خلل نہ ہو, بیٹھنا چاہو تو بیٹھو لیکن رونا مت. تب یہ یہودی کی بیوی آتی ہے, بچوں پہ نگاہ پڑی, اتفاق سے یہودی کو اولاد نہیں تھی, شادی کو ایک عرصہ ہو گیا تھا. عورتیں بڑی رحم دل اور بڑی نرم مزاج ہوتی ہے, بچوں پہ جیسی نظر پڑی حسین و جمیل شہزادے نظر آئے, شوہر سے کہتی ذرا سنو میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں, ذرا اندر تو آؤ.
کمرے میں لے جاتی ہے, کہا کہ میں نے بہت کچھ سن لیا ہے, یہ بچے کہتے ہیں کہ ہم یتیم ہیں, ہمارے ماں باپ نہیں, ویسے بھی ہمیں اللہ نے اولاد نہیں دی, کیوں نہ ہم ان بچوں کو گود لے لیں اور اپنا بیٹا بنا لیں. دیکھو کتنے حسین و جمیل بچے ہیں, اگر ہمیں اپنی اولاد بھی ہوتی تو ایسی حسین اولاد نہ ہوتی, ان کے حسن و جمال پہ تو میں فریفتہ ہو گئی ہوں. اور کتنی بڑی بات ہے کہ یہ ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ان کا نسب بھی بڑا اعلیٰ ہے, خاندان بھی بڑا اونچا ہے, کیوں نہ ہم ان کو گود لے لیں. شوہر کو اصرار کیا, شوہر راضی ہو گیا, انہوں نے بچوں کو اٹھایا, گھر میں بلوایا, گھر لے جانے کے بعد غسل کروایا, نئے کپڑے یہودی لاتا ہے بازار سے بچوں کو دیتا ہے, نئے کپڑوں سے بچوں کو آراستہ کیا, ان کے زخموں پر مرہم وغیرہ لگوایا, اس نے دوائیاں لگائی, پھر اچھا اور بہترین کھانا تیار کروا کے اپنے غلام اور کنیزوں کو کہتا ہے کہ آج سے میری اولاد ہے, ان کا حکم بھی تم ماننا جیسے میرا حکم مانتے ہو, جاؤ بہترین کھانے اور پکوان تیار کیے جائے. کھانے لگا دیے گئے, بچوں کو کہتا ہے بچوں کھاؤ, اور اب آج سے تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں, آج سے گھر تمہارا ہی گھر ہے. بڑا اچھا سلوک کیا بچوں کے ساتھ. جب بچے کھانا کھا چکے تو بچوں کی زبان سے ایک دعا نکلتی ہے, رب کائنات اگرچہ یہ یہودی ہے مگر اس نے تیرے نبی کی آل کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا, پروردگار اس کو ایمان کی دولت بھی عطا فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. بچوں کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوئی. رات ہوتی ہے, یہودی خواب دیکھتا ہے, اور خواب کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, اور وہ مسلمان بھی خواب دیکھتا ہے. اب اس کو خواب کیا نظر آتا ہے؟ قیامت کا ہولناکی کا منظر ہے, لوگ اپنے اپنے حساب کتاب میں مشغول ہے, لوگ اپنے حساب کتاب دے رہے ہیں, لوگ رسول اللہ کو شفاعت کے لیے تلاش کر رہے ہیں. منظر دیکھتا ہے وہ مسلمان بھی کہ اس میں بھی ہوں, اور میں جاتا ہوں اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں, میری شفاعت کیجئے, میں گناہ گار ہوں, آقا شفاعت کی امید میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں, اللہ کے نبی اپنی شفاعت عطا فرما دیجئے, مجھ گناہ گاروں کو بخشوا دیجئے. نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں اے مسلمان تیرا نام کیا ہے؟ کہا فلاں ابن فلاں. کہا کیا تو میرا امتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں. سرکار فرماتے اس کا ثبوت کیا ہے؟ کوئی سند ہے تیرے پاس کہ تو مسلمان ہے؟ کوئی پروف ہے تیرے پاس, کوئی ثبوت ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھتا تھا, میں زبان سے کہا کرتا تھا کہ آپ میرے رسول ہے اور میرے آقا ہے. کہا بدبخت سن, تو جس زبان سے مجھے اپنا نبی مانتا تھا, میرے شہزادوں نے بھی تو اپنی زبان سے ہی کہا تھا کہ وہ میرے شہزادے ہیں, میرے بچوں نے بھی تو کہا تھا کہ وہ میرے اولادے ہیں, مگر تو نے ان سے سجرہ اور سند طلب کی. آج بتا تیرے بعد مسلمان ہونے کی سند کون سی ہے؟ جا, میں تیری شفاعت نہیں کروں گا, تو شفاعت سے محروم کر دیا گیا ہے. یہ روتا ہے, سر پیٹے ہوئے نکلتا ہے, تبھی ہڑبڑا کے اس کی نیند کھلتی ہے. یہودی بھی خواب دیکھ رہا ہے لیکن خواب کا کچھ منظر آگے الگ ہے. یہ ہڑبڑایا, بیوی پہلو میں تھی, اٹھایا, بیگم اٹھو, نیک بخت اٹھو, میرا تو سب ایمان اکارت ہو گیا, میں اجڑ گیا. بیوی نے کہا کیا ہوا؟ اچھے خاصے گہری نیند میں تھے. پورا خواب کا منظر بیان کرتا ہے. بیوی کہتی ہے افسوس تم نے ان بچوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا, کاش تم اگر اولاد رسول نہ مانتے تب بھی کچھ اچھا سلوک کرتے تو کچھ امید تھی, مگر افسوس کہ تم نے نواز رسول کے ساتھ, شہزاد رسولوں کے ساتھ یہ سلوک کر کے اپنی آخرت تباہ کر لی. اب اس کا ایک ہی حل ہے, جاؤ ان بچوں کو تلاش کرو, دیکھو بچے کہاں ہیں, اور جب وہ مل جائے تو ان سے معافی بھی طلب کرنا, ان سے معافی تک مانگنا, اور ہو سکے تو پوری جدوجہد اور کوشش کر کے ان کو اپنے گھر لانا تاکہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یہ تلاش میں نکلتا ہے, گھوڑے پہ سوار ہوا, پورا شہر گھومتا ہے, مگر بچے تو یہودی کے گھر میں تھے, اس کو کہاں ملتے. دوپہر تک یہ ڈھونڈتا رہا بچوں کو, کبھی بازاروں میں, کبھی محلے کی گلیوں میں, ان بچوں کو تلاش کر رہا ہے, بچے نہیں ملتے. جب دوپہر کے بعد دھوپ تیز ہو گئی, تھکا ماندہ گھر کی طرف آتا ہے تو ایک منظر دیکھتا ہے, اور منظر یہ ہے کہ یہودی کے یہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے, ایک جم غفیر ہے, ایک لکڑے کی اور بلیوں کی مچان بنی ہوئی ہے, اس مچان کے اوپر یہودی بھی بیٹھا اور وہ دو شہزادے بھی بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ دوڑتا ہوا قریب پہنچا, دیکھا منظر یہ تھا کہ وہاں سائلوں اور مانگنے والوں کی ایک لمبی قطاریں ہیں, سونے اور چاندی کے انبار ہے, سکوں کے انبار ہے. وہ یہودی بڑے بڑے ہنڈے جس میں سونے اور چاندی کے سکے اٹھا کے وہ بچے اور شہزادوں کو دیتا ہے, اور رسول اللہ کی وہ اہل بیت کے شہزادے اپنی ننھی ننھی مٹھیوں سے وہ درم و دینار اٹھاتے ہیں اور سائل اور فقیروں کو خیرات کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ قریب پہنچا کہتا ہے یہودی تو ہمارے مذہب کا نہیں, یہ ہمارے مذہب کے بچے ہیں, یہ اسلام کے ماننے والے ہیں, یہ ہمارے نبی کے شہزادے ہیں, تجھے کیا حق ہے کہ تو ان بچوں کو اپنے پاس رکھ, لا ان بچوں کو میرے حوالے کر, ان بچوں کو مجھے دے, میں صبح سے انہیں تلاش کر رہا ہوں. وہ یہودی مسکرا کے کہتا ہے جناب میں اب یہودی نہیں, وہ کل کی بات تھی کہ میں یہودی تھا, مگر جو خواب تم دیکھ رہے تھے تمہیں بارگاہ رسالت سے دھتکار دیا گیا, مگر تم نے تو اتنا ہی دیکھا, وہ خواب میں بھی دیکھ رہا تھا, مگر اس کے بعد کا منظر یہ ہے کہ نبی پاک نے مجھے طلب کیا اور سرکار نے فرمایا تو نے ہماری اولادوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا, تیرے لیے شفاعت ہے, تیرے لیے نجات ہے, تیرے لیے جنت کا مزدہ ہے, تو ایمان کیوں نہیں لے آتا؟ میں نے خواب میں ہی نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, شان شہید اعظم, نعرہ رسالت.
मैं ख्वाब में ही मुसलमान हो चुका हूं, और जब बेदार हुआ तो इन बच्चों के हाथ पे मैंने तजदीद ईमान फिर कर लिया है। अब मैं यहूदी नहीं रहा, मुसलमान हो गया। इन बच्चों को मैं किसी हाल में नहीं दूंगा। ये अपनी बदनसीबी पे रोने लगता है, जमीन पे लौटने लगता है, और उसके बाद कहता है शहजादो तुम्हें तुम्हारे नाना का वास्ता कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी खता हुई कि मैंने तुम्हारे साथ बदसलूकी किया। वो यहूदी कहता है कि ऐ बच्चों तुम सखी घराने के बच्चे हो, देखो तुम्हारी बदौलत मुझ जैसे नामुराद को जन्नत मिल गई, मुझ जैसे बदबख्त को जहन्नम से जन्नत की तरफ मोड़ दिया गया। तुम सखी घराने के बच्चे हो, ऐ बच्चों इसके हक में भी तुम दुआ कर दो। सुभान अल्लाह। बच्चे दुआ करते हैं कि परवरदिगार तेरे कसूर को माफ करे, अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को माफ करे। इस वाक़े से उलमा कराम ये बयान करते हैं कि किसी के नसब की कुरेद करना, किसी के नसब को मालूम करना, किसी सैयद को हकीर जाना कितना बड़ा वबाल जान है। मगर ये सिक्के का एक पहलू है। शरीयत इत्तेदाल का नाम है। शरीयत इस्लामिया इत्तेदाल को पसंद करती है। जहां शरीयत हम जैसे गैर सादात को, हम जैसे गैर सैयदों को, हम जैसे दूसरे नसब वालों को ये तलकीन करती है और ये तालीम देती है कि रसूलुल्लाह की अहले बैत और रसूलुल्लाह की औलादों की ताज़ीम करो, वहीं ये भी वो शरीयत हुक्म देती है कि जो अहले बैत है उन्होंने भी दूसरों के एहतराम को मलूद रखना चाहिए। ये नहीं है कि सैयद है तो आप दूसरों को दलील करते फिरे, ये नहीं है कि आप सादात है तो किसी को भी झड़कते फिरे। अब भाई मैं तो आले रसूल हूँ, कोई मुझे गाली नहीं बक सकता, कोई मेरे खिलाफ बोल नहीं सकता, वो तो बेचारा अपने ईमान से डर रहा है। मैं एक मौलाना का नाम नहीं लेना चाहता, बस एक जुमला कहूँगा, देखें आप समझे ना समझे, बस एक मिसाल दे रहा हूँ। एक सैयद मौलाना है, किसी मसले में उन पर हुक्म गुमराहियत लगा। नागपुर में उनसे मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे 2 घंटे गुफ्तगू किया कि हज़रत उलमा इकराम ने जब आप पे हुक्म गुमराहियत लगाया तो आप तौबा क्यों नहीं कर लेते। उन्होंने कहा फतावा रज़विया लाई जाए। फतावा रज़विया शरीफ आई, खोला गया। खोलने के बाद फतावा रज़विया में उन्होंने मसला दिखाया मुझे, देखिए आला हज़रत ने लिखा है कि सैयद अगर बदमज़हब भी हो जाए तब भी ताज़ीम नहीं जाती। ये इख्तलाफी मैटर में छेड़ना नहीं चाहता, सिर्फ मसला समझाना है। आप सोचे नहीं कि कोस मौलाना से हुआ क्या हुआ, इसको तमसील समझ ले, हालांकि हकीकी वाक़या है। उन्होंने इस किताब खोला और कहा देखो फतावा रज़विया में है सैयद अगर बदमज़हब हो जाए जब भी ताज़ीम नहीं जाती। मैंने बड़े अदब से अर्ज़ किया हज़रत आप आलिम दीन हैं, मैं तस्लीम करता हूँ फतावा रज़विया का ये मसला मेरे सर आंखों पर, इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी का ये हुक्म मेरे सर आंखों पर। बेशक मेरे इमाम ने हम जैसों को हुक्म दिया कि सैयद अगर बदमज़हब भी हो जाए तो ताज़ीम नहीं जाती, मगर इमाम ने ये कब कहा है कि सैयद बदमज़हब हो तो बदमज़हबी पर कायम रहे। ये कब लिखा है इमाम ने? इमाम ने ये कहा है क्या कि भाई चलो बदमज़हब होने पर भी ताज़ीम नहीं जाती तो सैयद साहब बदमज़हबी पे अड़े रहिए, तो भाई मत कीजिए? नहीं साहब, ये तो हम जैसों के लिए हुक्म है कि आप सैयद इस्लाम ताज़ीम करें, मगर आप बदमज़हबी पर रहेंगे तो आपके रसूल आपके नाना आपसे नाराज़ होंगे। हज़रत मौला कायनात ने फरमाया, मौला कायनात की आखिरी वसीयत क्या है मालूम है? सबे सनाबिल शरीफ में हज़रत अब्दुल वहाब बिलग्रामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो सैदी सैयद है, खुद इमाम जाफ़र सादिक की नस्ल से है, और इनके ख़ानदान की एक शाख माहरेरा जाती है और एक मसूली जाती है। अब्दुल वहाब बिलग्रामी सैयद नसब सैयद है। बड़ी मारकतुल आरा किताब लिखी सबे सनाबिल शरीफ जो बारगाह रसूल में मकबूल हुई, उसमें मौला कायनात की वसीयत नकल करते हैं कि इमाम हसन को बुलाया और इमाम हसन को वसीयत करते कहते हैं बेटा हसन अच्छे अमल करो, लोगों की दिलजोई करो, लोगों को खुश करो। ए हसन याद रखो जिसको अमल पीछे कर दे उसको हसब व नसब आगे नहीं बढ़ा सकता, और जिसको अमल आगे करे उसको हसब व नसब पीछे नहीं कर सकता। और उसके बाद इरशाद फरमाया मौला कायनात ने बेटा हसन अच्छे अमल के बाद काला हबशी गुलाम जन्नत में चला जाएगा और बदअमली की बिना पर कुरैशी गोरा चिट्टा जहन्नम में चला जाएगा। अल्लाह को वो बंदा बहुत पसंद है जिसका तकवा बहुत बुलंद है। अल्लाह हसब व नसब नहीं देखता, ये हमारे लिए है, ये हमारे लिए हुक्म है कि हम सादात की ताज़ीम करें। मगर बदमज़हब और कुफ्र और इर्तिदाद, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये हमेशा याद रखें। अगर कोई बदअकीदा हो जाए, कोई इस्लाम से फिर जाए, मुर्तद हो जाए, जैसा कि हमारे उलमा कहते हैं वहाबी मुर्तद है, देवबंदी मुर्तद है, कादियानी मुर्तद है, राफ़दी शिये मुर्तद है, इस्लाम से फिर गए। इनमें अगर कोई अपने आप को सैयद कहता है तो उसकी ताज़ीम नहीं की जाएगी, इनको जलील किया जाएगा, खार किया जाएगा। वजह क्या है? वजह यह है कि नसब उस वक्त तक ही सलामत रहता है जब तक ईमान का रिश्ता जुड़ा हुआ है। ईमान अगर कट जाए तो नसब भी कट जाता है। तो जो बदअकीदा हो गए, जिन्होंने अहले सुन्नत वल जमात को छोड़कर दूसरी जमातें इख्तियार कर ली, अगर वो सैयद भी थे अब सैयद नहीं रहे, काबिल एहतराम नहीं। अल्लाह के रसूल की हदीस है, सरकार ने इरशाद फरमाया अगर तुमने किसी बद्दीन को अपना सैयद कहा, अपना सरदार कहा, तुमने अपने रब को गजब दिलाया, तुमने अपने रब को गजब में लाया।
रब गजबनाक होता है जब किसी बद्दीन बदअकीदा की ताजीम की जाती है, या किसी बदअकीदा को सैयद कहा जाता है, या उसको सैयद कह के ताजीम की माँ की जाती है। तो मालूम हुआ कि सारे रिश्ते जो है ईमान से वाबस्ता है, सारे ताल्लुकात ईमान से वाबस्ता है। तो वही सैयद हमारे लिए काबिल एहतराम है, अगरचे फासिक हो, अगरचे बेनमाजी है, गुनाहगार है, मगर रसूलुल्लाह की नस्ल से काबिल ताजीम है। मगर बदअकीदी रिश्ता ईमान को जब मुनक़ते कर देती है तो नसब को भी मुनक़ते कर देती है। हज़रत सदरुश्शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान आला हज़रत के शागिर्द भी है, खलीफा भी है, पढ़ाते थे एक मदरसे में। आला हज़रत की खिदमत में हाजिर हुए एक मरतबा, अर्ज़ करते हुजूर एक सैयदज़ादा मेरा शागिर्द है, पढ़ता है मुझसे मगर बहुत ही बददिमाग है। उसका हाल ये है हज़रत कि जो पढ़ा उसके दिमाग में घुसता ही नहीं, बड़ा परेशान करता है। तो बहैसियत उस्ताद बाद औक़ात सज़ा भी देनी पड़ती है। तो हुजूर चूँकि सैयदज़ादा है तो क्या उसको सज़ा दी जाए कि ना दी जाए, मारा जाए कि ना मारा जाए। आला हज़रत क्या तालीम फरमाते हैं, इरशाद फरमाया कि तंबी के लिए उस्ताद मार सकता है, मगर जब किसी अपने सैयदज़ादे शागिर्द को मारे तो नियत ये करे कि शहजादे के पाँव में मिट्टी लग गई है, उसको साफ कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, नियत ये सुभान करे, अल्लाह। नियत ये ना हो कि सजा दे रहा हो, नियत ये करे। और इसी तरह उलमाए कराम ने मसला लिखा कि शरीयत का कानून सब पर नाफिज किया जाएगा, सैयद हो या गैर सैयद। मिसाल के तौर पर अगर गैर सैयद ने चोरी की, हाथ काटे जाएंगे, जिना किया, संसार किया जाएगा, कोड़े लगाए जाएंगे। और अगर यही काम का माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह ना करे कोई सैयद भी इर्तिकाब करता है, कोई सैयद चोरी कर ले या कोई सैयद जिना कर ले, अल्लाह ना करे माज़अल्लाह, उस पर भी शरीयत की कलम लगाई जाएंगी, हुक्म लगाया जाएगा, सजा दी जाएंगी। मगर फर्क सिर्फ कितना है, उलमा फरमाते कि जल्लाद जब सजा नाफिज करे तो इरादा और नियत यही करे कि सैयद साहब के पैर में मिट्टी लगी है, कीचड़ भर गई है, कीचड़ को धो रहा हूँ, क्योंकि आले रसूल है, वो खानदान नबुव्वत का खून है उसके अंदर। तो ये सारे मसाइल से हमें समझना चाहिए कि सादात का मकाम बहुत बुलंद है। तो जिस तरह सैयदों का एहतराम करना है और जिस तरह हमें सैयदों से ये नहीं पूछना है कि आप सैयद इसकी सनद दो, उसी तरह शरीयत का एक दूसरा पहलू भी है, हर पहलू को मलहूज रखना है। ये तो हमारे लिए हुक्म है कि हम सादात, कोई कहे मैं सैयद हूँ तो हम तस्लीम कर ले, पुरेद ना करे, तहकीक ना करे कि आप सैयद है या नहीं, हम मान ले। वो कहे सैयद है, ठीक है, आपने कहा भाई हम सैयद मानते हैं, मगर लोगों के लिए ये भी शरीयत में हुक्म है कि कोई अपने आप को झूठा सैयद भी ना कहे। अब ये नहीं कि यार सैयद साहब के भाव बहुत है, अब मैं सैयद नहीं हूँ लेकिन मैं अपने आप को सैयद कह रहा हूँ। दूसरे शहर में गए, मसलन अब मैं अपने शहर में रहता हूँ, सब जानते हैं भाई फारूक खान है, लेकिन अब मैं बॉम्बे आऊँ और कहूँ सैयद फारूक नाम है मेरा, ताकि लोग ज़्यादा ताज़ीम करें। ये हो गया नसब तब्दील करना। और इसके बारे में इतनी सख्त वईदें आई है कि मैं समझता हूँ इतनी सख्त वईदें शायद ही किसी और मसले में आई हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तमाम फरिश्तों की, तमाम रुए ज़मीन के इंसानों की उस पर लानत जो अपना नसब कोई और बताए जबकि वो किसी और नसब से है। समझ रहे आप? एक हदीस इतनी सख्त है, मैंने जब वो हदीस पढ़ा तो मैं बहुत देर तक पढ़ता रहा और सोचता रहा कि या अल्लाह, किस जलाल में अल्लाह के नबी ने ये जुमले इरशाद फरमाए होंगे। मोहत्ता इमाम मालिक में, वो इमाम मालिक ने उस हदीस को लिखा है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैं बहुत मुअद्दब अंदाज में वो जुमला कहूँगा ताकि समझने वाले समझ जाए। रसूलुल्लाह का गज़ब देखें, इससे ज़्यादा गज़बनाक सरकार को मैंने किसी हदीस में नहीं पाया। अबू हुरैरा कहते हैं मोहत्ता इमाम मालिक की हदीस कि कुछ लोग लोगों पर फौकियत जाहिर करने के लिए अपना नसब कुछ और बताते थे। गुफ्तगू कर रहे हैं, बैठे और कह रहे हैं मैं फुला नसब से हूँ, मैं फुला खानदान से हूँ, जबकि उस खानदान के वो नहीं थे। और ये भी याद रखें कोई खानदान, कोई नसब छोटा नहीं है इस्लाम में। अल्लाह के नज़दीक हर मुसलमान वो मुसलमान अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा है जो तकवे के मेयार पे ज़्यादा है। जितना परहेजगार है उतना वो अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा है। तकवा मेयार है, नसब नहीं है, खानदान नहीं है। तो जो अपने आप को समझते क्या ऊंचे खानदान वाले, ये भी मुजरिम है, और दूसरों को जलील कर रहे हैं, ये भी दूसरा जुर्म है। तो ना किसी को जलील समझे, ना अपने खानदान और नसब पर फख्र करे, मुसलमान को अपना भाई समझे, हर मुसलमान आपस में भाई है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, अबू हुरैरा कहते हैं कि कुछ लोग बैठे हुए थे और वो अपने खानदान और हसब और नसब पर फख्र कर रहे थे, कह रहे थे मैं फुला खानदान से हूँ, फुला नसब से हूँ। अबू हुरैरा फरमाते कि मैं जानता था उनमें बात झूठे थे, उनका खानदान वो नहीं था, वो नसब नहीं था जो बता रहे थे। मैं अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुआ, कि या रसूलल्लाह मैंने कुछ लोगों को इस हाल में पाया कि वो अपना हसब और नसब खानदान वो बताते हैं जिस खानदान से उनका ताल्लुक नहीं है और उस पर फख्र करते हैं। सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा जाओ उनको मना कर और कहो अल्लाह उसका रसूल बेजार है उन लोगों से जो अपना नसब तब्दील करते हैं। अल्लाह की लानत जो अपना बाप किसी और को बताए, बाप कोई और है असल बता रहा किसी और को अपना बाप। एक मकाम में फरमाया जिसने अपने नसब को दूसरा बताया, नसब कुछ है, बाप कोई है, किसी और को बाप बता रहा है, किसी और का नसब मंसूब कर रहा है, तो सरकार फरमाते हैं कि उसने उस चीज का इनकार किया जो मुझ पर नाजिल हुई, यानी कुरान अजीम का।
और कुरान का इनकार क्या है? कुफ्र है। अबू हुरैरा जा उनको मना कर, कहे अल्लाह रसूल बेजार है इससे। अबू हुरैरा फरमाते मैं गया उनको मना किया, वो खामोश हो गए। मगर कुछ अरसे के बाद वो बैठे थे, फिर वही गुफ्तगू चल रही है, फिर वही बात चल रही है, अरे मेरा तो खानदान ये है, हमारे खानदान में ऐसा होता था, हमारे खानदान की कौन क्या बराबरी करेंगे। अबू हुरैरा कहते हैं मैं फिर रसूलुल्लाह के पास आया, मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह आज वो लोग फिर बैठ के इसी तरह बातें कर रहे हैं। सरकार ने फरमाया जाओ उन्हें सख्ती से मना कर। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने फिर सख्ती से मना किया और कहा अल्लाह रसूल बेजार है, रसूलुल्लाह मना करते हैं कि कोई अपने नसब पे फक्र ना करे, अपने को एक दूसरे पे फौकियत ना दो। उन्होंने खामोशी इख्तियार की। तीसरे बार इत्तेफाक से कुछ अरसे के बाद फिर यही गुफ्तगू हो रही है। तीसरा मौका था, अबू हुरैरा फिर गए और फिर शिकायत की तो रसूलुल्लाह कहते हैं अबू हुरैरा तेरी माँ तुझ पर रोए, तू बार बार उनकी शिकायत लाता है, तू खामोश क्यों नहीं हो जाता, ताकि जब जब तू शिकायतें लाता है अल्लाह रसूल उनसे बेजारी का इजहार करते और वो गुनाह में पड़ते। और फरमाया कि अफसोस उनकी अक्लों पर, क्या वो अल्लाह रसूल पर ईमान नहीं रखते कि उन्हें मना किया जाता है फिर वही हरकत करते हैं। अब इतना सख्त जुमला फरमाया, सुने बहुत मुअद्दब में कह रहा हूं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जा अबू हुरैरा उनसे कहे कि जो अपना नसब तब्दील करे, अपना नसब वो बताए जिस नसब से वो नहीं, तो उसके बाप का उज़्वे तनासुल उसके मुंह में। अंदाजा लगाइए कितना जलाल होगा रसूल। मोता इमाम मालिक की हदीस है ये, इमाम मालिक ने लिखा है सही सनद के साथ। इतने सख्त अंदाज में मैंने अब तक जो मेरा अपना कलील मुताल्ला है उसमें रसूलुल्लाह के इस अंदाज को मैंने तो नहीं पाया कि सरकार ने इतने सख्त जुमले इस्तेमाल फरमाए। तो अंदाजा लगाइए कि जब जो सैयद नहीं है अगर वो झूठा सैयद बनता है तो वो अपनी आखिरत तबाह कर रहा है। तो जिस तरह हमारे लिए हुक्म कि हम किसी सैयद की नसब की कुरेद ना करें, उसी तरह वो आदमी भी खुद सोचे अगर वो सैयद है तो वाकई अपने आप को सैयद बताए, और नहीं है तो महज लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबदूल करने के लिए, लोगों का एहतराम हासिल करने के लिए अपने आप को झूठा सैयद भी ना कहे। ठीक है, बहुत बड़ा वबाल है, अल्लाह ताला इससे हमको बचाए। और दूसरा, सादात को घमंड से भी बचना चाहिए। हालांकि मेरी हैसियत नहीं कि मैं सादात को नसीहत करूं, मैं नसीहत नहीं कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि अगर अल्लाह ने आपको सैयद बनाया है तो आप दूसरों की भी एहतराम कीजिए, और दूसरों का जब आप एहतराम करेंगे, दूसरों को इज्जत से बात करेंगे तो दूसरे भी आपको इज्जत देंगे। वरना क्या होगा, ये हो सकता है कि आपकी झिड़क से, आपके धुतकारने से हो सकता है सामने वाला आपके सादात होने का लिहाज कर ले, आपको कुछ ना कहे, मगर आपसे बेजार हो जाएंगे, आपसे मिलना जुलना छोड़ देगा, आपसे दूरी अख्तियार करेगा। तो ये भी बुरी बात है। सैयद को भी घमंड भी नहीं करना चाहिए। और ये जो जहन बन गया ना, मुझे इससे सख्त इख्तिलाफ है। अक्सर हमारे यहाँ जो एक जुमला बोला जाता है, सैयद बड़े जलाली होते हैं। मैंने कहा के जलाली होते हैं, गालियां बक देंगे, किसी को भी धुतकार देंगे, किसी को भी झिड़क देंगे, किसी की भी जलील कर देंगे, सैयद साहब जान दो मत बोलो, बहुत जलाली होते। मैं कहता हूँ ये सब बनावटी बातें हैं। जो सैयद होता है वो जलाली नहीं, बड़ा नर मिजाज होता है, इसलिए कि इमाम हुसैन उनके जद्दे करीम बड़े नर मिजाज थे। सुभान अल्लाह, सुभान अगर वो नर मिजाज ना होते तो करबला में इतना सब्र ना करते, बेशक जलाल दिखाते। और कसम खुदा की अगर इमाम हुसैन जलाल दिखाते तो एक यजीदी भी नहीं बचता वहां पर। उनसे ज्यादा कौन नर मिजाज होगा, उनसे ज्यादा कौन माफी करने वाला होगा। अरे उनका तो ये हाल था, आप अंदाजा लगाइए, उनके एक शहजादे इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमने उनकी कुंडे की फातिया को भी इतना हार्ड बना दिया, सब लगता है कि कुंडे की फातिया नहीं है, एक वबाल है। फातिया नहीं कर रहे, एक वबाल सर दे लिया, घर के कपड़े धुल रहे, चिंदिया तक निकल रही है, घर में लिपाई हो रही है, वो औरत नापाकी की हालत में, एक कमरे में नहीं आना, कुंडे की फातिया है। अरे बाप रे, क्या हो गया भाई, काय को इतना डरा रहा है। याद रखिए, कुंडे की फातिया में नापाकी की हालत में औरत कुंडे बना भी सकती है, खा भी सकती है, सिर्फ फातिया ना दे, कि उस हालत में कुरान पढ़ने से मना किया गया, तिलावत कुरान से रोका गया है। सिर्फ कुरान उस हालत में ना छुए ना पढ़े, मगर वो कुंडे की फातिया नहीं दे सकती, लेकिन कुंडे खा भी सकती है और कुंडे के अशिया जो है वो पका भी सकती है। और उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि पूरे घर के एक कोने को आप साफ करते बैठे रहें। इमाम जाफर की से छवि क्या बनाई सुन्नियों ने, ऐसा मालूम होता है इमाम जाफर बड़े जलाली, बड़े साफ डंडा लेके खड़े हैं कि जरा सी भी गड़बड़ मेरी फातिया मुझे दिया दन करके। ऐसा नहीं है भाई, इतने नरम मिजाज थे वो, इतने नरम मिजाज, इतने शफीक थे वो रसूलुल्लाह की उम्मत पर। उनका एक साहबजादा था शीरखार, दूध पीता बच्चा। एक कनीज, एक दाई थी जो उसको देखभाल करती थी। आपने कनीज को हुक्म दिया था कि मकान की छत पर ना जाया करो। वजह क्या थी? इसीलिए कि उमूमन छत पर बेपर्दगी होती है, छत पर बदनिगाहियां होती है, और कनीज उस जमाने में पर्दा नहीं करती थी। कनीज और आज़ाद औरत, यानी किसी घर की औरत जो कनीज नहीं है, गुलाम नहीं है, आज़ाद औरत है, किसी की बीवी है, और कनीज जो खरीदी गई है, उनमें इम्तियाज ये था कि आज़ाद औरतें पर्दा किया करती थी, कनीज अपने चेहरे खुले रखा करती थी। उनके चेहरे खुले होने से ही समझ में आ जाता था ये कनीज है, ये पहचान थी उस वक्त।
तो आपने मना किया कनीज़ों को कि छत पे ना जाया करो मकान की, इसलिए कि मकान की छतों पे अक्सर औरतों की तरफ लोग निगाहें उठाते और माज़अल्लाह बदनिगाहियाँ होती। एक मरतबा इमाम जाफ़र सादिक किसी काम से बाहर तशरीफ़ ले गए हुए थे। धूप बहुत तेज़ थी, गर्मी तेज़ थी, छत पे कुछ जगह साया था, बच्चा रो रहा था। कनीज़ इमाम जाफ़र के उस बच्चे को लेकर छत पर जाती है ताकि बच्चा कुछ बहल जाए, और छत पर वो बच्चे को बहला रही है, छाँव में खड़े होकर, हवा चल रही है। उसी वक्त इमाम जाफ़र सादिक तशरीफ़ लाते हैं। कनीज़ ने छत से देख लिया कि इमाम चले आ रहे हैं, घबरा गई कि अगर इमाम ने देख लिया मैं छत पर हूँ, सख्त नाराज़ होंगे, डांटेंगे, हो सकता है सज़ा दे। कनीज़ घबराहट में उस बच्चे को लेकर सीढ़ी से उतरना चाहती है। कोशिश ये है कि इमाम के घर में दाखिल होने से पहले मैं सीढ़ी से उतर आऊँ और कमरे में दाखिल हो जाऊँ ताकि इमाम को पता ना चले। मगर अजीब इत्तेफाक था कि इमाम तेज़ी से कमरे में दाखिल हुए। इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दाखिल होना, कनीज़ का सीढ़ियों पर कदम रखना, कनीज़ पर इमाम जाफ़र की निगाह पड़ी, कनीज़ की निगाह इमाम जाफ़र में पड़ी, कपकपी तारी हुई कनीज़ पर, घबराई, पैर लड़खड़ाया, बच्चा गोद से गिर के ज़मीन पर आता है और इंतकाल हो जाता है। कनीज़ भी सीढ़ियों से गिरते हुए ज़मीन पर आती है। बच्चे को हिलाया डुलाया तो इंतकाल। अब कनीज़ खौफ से काँप रही है, अब तो मेरा काम हो गया, यकीनन मुझे इमाम तो कत्ल कर देंगे कि इमाम का बच्चा मेरे हाथ से कत्ल हो गया, शहीद हो गया, माज़अल्लाह शहीद हो गया। इमाम जाफ़र ने एक निगाह उठाई, आंखों में आंसू थे, शहजादे के इंतकाल का गम था। मगर आप क्या फरमाते हैं? कनीज़ जा, तू आज़ाद है, आज़ाद है तू। कनीज़ खौफज़दा तो थी, वहाँ से चलेगी। तभी पीछे आपके खादिम थे, वो मंजर को देख चुके थे। कहते इमाम मैं आप पर वारी जाऊं, आपके शहजादे का विसाल हो गया। इसे वक्त आदमी गुस्से का इजहार करता है, सजाएं देता है, और आपने उसको आज़ाद कर दिया, बेहतर सलूक फरमाया। इसका सबब मैं समझ नहीं सका। इमाम फरमाते सुनो, वो जो गिरी उसकी वजह क्या थी? वजह यह थी कि मुझे देखकर उस पर खौफ तारी हुआ, मैंने इसलिए आज़ाद कर दिया कि मुझे अंदेशा हुआ कि क़यामत के दिन रब कायनात मुझसे ये ना पूछ ले, जाफ़र सादिक तूने अपने अंदाज को, अपने तरीके को, अपने आप को इस तरह बना रखा है कि लोग इतने तुझे खौफज़दा हो जाते तुझे देखकर। बता, क्या तू अपने आप को क्या समझता था कि लोग देखकर इतने खौफज़दा हो जाते थे और उस खौफ के सबब बच्चे गिर जाया करते थे, वो समझ नहीं पाते थे। तो अल्लाह ने मुझसे ये पूछ लिया तो मैं इसका क्या जवाब दूंगा कि मैंने अपना रंग ढंग बादशाहों की तरह बना दिया है। तो इससे पहले कि अल्लाह मुझसे सवाल करे और मेरे इस रवैये के बारे में मुझसे पूछा जाए, मैंने कनीज़ को इसलिए आज़ाद कर दिया कि उसका कफ़ारा हो जाए। और मैं रब की बारगाह में अर्ज़ करूँ, मौला मैंने अपने रवैये को, अपने आप को इस तरह नहीं बनाया था कि लोग इस दर्जे मुझसे खौफ खाएं। तो ये इमाम जाफ़र का आप यहाँ अंदाज़ा देखें कितने नरम मिजाज थे, जो उनके बच्चे जिसकी वजह से शहीद हो रहा है उसको भी आज़ाद कर दिया। मगर हमने इमामों का तसव्वुर क्या बना लिया? बड़े जलाली। हमारे अइम्मा जलाली नहीं है, बड़े शफीक है। शफीक ना होते तो हमारी शफात के लिए अल्लाह की बारगाह में बार बार दुआएं क्यों करते हैं? बेशक इनकी माँ तो इतनी शफीक थी कि जब हजरत अली ने निकाह का पैगाम दिया तो रसूलुल्लाह ने कहा कि अली महर क्या दोगे? तो अली ने कहा या रसूलुल्लाह आप महर जो मुकर्रर करे। कहा मैं 40 मिशकाल 40 अशरफियाँ मुतय्यन करता हूँ। अपनी शहजादी खातून जन्नत के हुजरे में तशरीफ लाते हैं, कहते बेटी मैंने अली के साथ तुम्हारे निके का इरादा किया और महर के एवज अली 40 मिशकाल रकम देना चाहते हैं, कहो तुम इस महर पर राजी हो या नहीं? हजरत खातून जन्नत कहती है बाबा जान मैं इस महर पर राजी नहीं, ये बड़ा मामूली महर है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ताज्जुब से देखते अपनी बेटी को, मेरी वो बेटी जिसको न जेवर का शौक, मेरी वो बेटी न जिसको कुछ खाने का शौक, न लिबास की शौकीन, सादा जिसने लिबास पहन के अब तक जिंदगी गुजारी है, सादा खाना खाया है, वक्त आने पर फाके भी किए मगर कभी शिकायत और गिला नहीं किया। कभी मैंने जेवर अपनी बेटी को नहीं दिया, कभी जेवरात से अपने आप को आरास्ता नहीं किया। इतना सारा जिंदगी गुजारने वाली बेटी आज माल का कैसे ज्यादा मुतालबा कर सकती है? नबी ने ताज्जुब से देखा। खातून जन्नत अर्ज करती है बाबा जान आप किसी गलत फहमी में मेरे ताल्लुक से मुब्तला ना हो, बल्कि मैं आपकी बेटी और शहजादी हूँ। आप कौनैन के ताजदार है, अल्लाह ने आपको तमाम दुनिया और आखिरत के खजाने अता किए है, मैं आपकी शहजादी हूँ। ये महर तो मामूली है। कहा बेटी फिर आप क्या महर चाहती है? अर्ज करती है बाबा जान मैं अपना महर अल्लाह की बारगाह में तलब करती हूँ, सुभान अल्लाह, मेरा महर रब कायनात अता करेगा, मेरा महर अली नहीं देंगे। कहा फातिमा मेरी शहजादी मेरी बेटी जाओ तुम्हारा मामला अल्लाह के सुपुर्द है, अपने महर का मुतालबा अल्लाह से करो, यकीनन अल्लाह अता करेगा। खातून जन्नत आती है, वुजू किया, वुजू करने के बाद 2 रकात पढ़ती है और सजदे में अर्ज करती है मालिक कायनात तू जानता है दिलों के भेदों से वाकिफ है, तू नबी की शहजादी के दिल के भेद को भी जानता है कि मेरा महर क्या होना चाहिए। मौला मुझे वही महर दे जो मेरी ख्वाहिश है। खातून जन्नत के दिल की ख्वाहिश क्या थी? जिब्रील आते हैं, एक तहरीर नबी की खिदमत में पेश करते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह अल्लाह ने खातून जन्नत जो महर चाहती थी उसको कबूल कर लिया और ये महर भेजा गया है, ये तहरीर भेजी गई है। तहरीर में क्या था कि फातिमा ज़हरा ने जो महर तलब किया रब से वो ये कि नबी पाक की गुनाहगार उम्मतों की शफाअत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अल्लाह इसको कबूल करता है। 70,000 ऐसे जहन्नमी जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, उनकी आज़ादी खातून जन्नत का महर है। ये इतने शफीक थे कि हमें वक्त ये रसूलुल्लाह के उम्मतियों का ख्याल करते थे। इमाम हुसैन इतने शफीक थे कि पूरा खानदान लुटा दिया। पूरी तारीख देख जाइए, अली असगर भी शहीद हुए मगर इमाम ने दुआए हलाकत नहीं किया यजीदियों के लिए। यही कहा है अब भी वक्त है समझ जाओ। अली अकबर शहीद हो गए मगर इमाम यही कहते रहे तुम अली अकबर का खून बहा चुके मगर अब भी अपने इरादे से बाज आ जाओ। तुमने कासिम को भी कत्ल कर दिया, अब भी वक्त है कि बाज आ जाओ। हर वक्त इत्माम हुज्जत फरमाते रहे, हर वक्त आखिरी लम्हों तक, यहाँ तक के पूरे 72 नफूस करबला में शहीद हो गए। अब कोई मर्द नहीं है सिवाय ज़ैनुल आबिदीन के, आबिदे बीमार बचे हैं और तन्हा इमाम अली मकाम की जात है। मगर इमाम उस आलम में भी जब मैदान करबला में आए तो उस वक्त भी यही खुतबा इरशाद फरमाया, ऐ यजीदियों जितना तुम खून बहा सकते थे बहा दिया, तुमने मेरे खानदान को उजाड़ दिया, अहले बैत नबुव्वत के चमन को तुमने खत्म कर दिया, मगर अब भी मेरे खून से अपने हाथों को रंगीन न करो। अब भी वक्त है, अगर तुम मेरे खून से अपने हाथों को रंगीन करने से बाज आ गए, हो सकता है कि अल्लाह ताला तुम्हारे जुर्म को माफ कर दे। अब भी वक्त है। इतने नरम मिजाज थे अहले बैत नबुव्वत, सारी जिंदगी उम्मत की फिक्र रही, सारी जिंदगी नबी के गुनाहगार उम्मतियों को बख्शवाने की फिक्र रही। ये कहां से जलाली हो सकते हैं? तो सादात को चाहिए कि ये जहन व फिक्र से निकाले, बल्कि अपने जद्दे करीमा, अपने जद्दे करीम इनकी सीरत को मद्देनजर रखे कि हमारे जद्दे करीम उम्मत मोहम्मदिया पर कितने शफीक हुआ करते थे, हमें भी अपने कौम के लोगों पर कितना शफीक होना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम अबू हनीफा के शागिर्द, इमाम बुखारी के शेख में है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, सैयद नहीं थे, मगर एक मरतबा रास्ते से गुजर रहे हैं, जब में गफीर आपके साथ चल रहा है। लोग आते हैं, आपकी दस्तबोसी करते हैं, आपके हाथों को बोसा देते हैं, आपके जुब्बों को बोसा देते हैं, एहतराम से हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। उसी रास्ते से एक सैयदजादा नशे में दूध शराब की पीकर नशे में लड़खड़ाते कदमों से चला आ रहा था। शहजादे से निगाह दो चार हुई। शहजादा जब आया करीब में, शराबी था मगर सैयदजादा था। तंज के अंदर अब्दुल्ला इब्न मुबारक से कहता है, अब्दुल्ला मैं रसूलुल्लाह की ख़ानदान से हूँ, मेरी कोई ताज़ीम नहीं करता, और तू रसूल की ख़ानदान से नहीं है, तेरा नसब मुझसे ऊंचा नहीं, मगर हाल यह है कि तेरी ताज़ीम इतनी की जा रही है कि लोग तेरे हाथ चूम रहे हैं, तेरे जुब्बों को चूमा जा रहा है। अब्दुल्ला इसकी वजह क्या है? अब्दुल्ला कहते सुन, इल्म तेरे नाना की विरासत थी और बुराइयां बदआमालियां मेरे बाप की विरासत थी। मैंने तेरे बाप की, तेरे नाना की विरासत को हासिल कर लिया और तूने मेरे बाप दादा की विरासत को ले लिया। तो जब मैंने अच्छी विरासत पाई तो उसके बाद मुझे इज्जत और ताज़ीम मिली। तूने बुरी विरासत ली तो बावजूद आले रसूल होने के भी तुझे लोग एहतराम से नहीं देखते। जुमला सख्त था, तंजिया जुमला था। रात होती, अब्दुल्ला इब्न मुबारक सोते तो ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला करीब गए, चाहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को बोसा दे, मगर रसूलुल्लाह ने चेहरे को फेर लिया। फिर आगे बढ़ते, सरकार मैं आपका उम्मती हूँ, आपका चाहने वाला हूँ, अब्दुल्ला हूँ, मैं आपके दीन का खादिम हूँ। नबी पाक ने फिर चेहरे को फेर लिया। फिर करीब आए, फिर उस रुख आते, सरकार की बारगाह में फिर अर्ज करते। अल्लाह के नबी फरमाते, अब्दुल्ला तो हमारे दीन का खादिम ज़रूर है, मगर हमारी औलादों के दिलों को दुखाता है और ये समझता है कि उनका जद्दे करीम तुझसे खुश हो जाएगा। मेरी औलाद का कल्ब को तकलीफ देता है और उसके बाद ये गुमान करता है कि मेरी औलाद को तकलीफ देने के बाद उसका जद जो है, उसका नाना जो है, तुझसे खुश हो जाएगा। बाखुदा तूने मुझे तकलीफ पहुंचाई है। हज़रत अब्दुल्ला अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह मैं तौबा करता हूँ सरकार, हुजूर बताइए आप मुझसे कब राजी होंगे, अपनी रज़ा का कोई रास्ता अता फरमाइए। सरकार ने फरमाया, अब्दुल्ला अगर तूने मेरे शहजादे से माफ़ी ना मांगी तो तेरी मग़फ़िरत मुश्किल है। हज़रत अब्दुल्ला हड़बड़ा के उठे, बेदार हुए और रात ही में शराबी शहजादे को तलाश करने निकलते। ढूंढ रहे हैं, शराब खानों पे देखते हैं मगर शहजादे का पता नहीं। सड़कों पे देखते हैं इस उम्मीद पे कि शराबी उमूमन पड़े होते हैं नशे की हालत में, नजर नहीं आते। रोने लगते हैं, हाय अफसोस वो शहजादा ना मिला तो फिर क्या होगा। दीन की इतनी खिदमत एक तरफ, रसूलुल्लाह की हदीसों की रिवायतें एक तरफ, सब मामलात एक तरफ, अब तो आखिरत दाव पे लगी है। शहजादे की माफी पर पूरा अमल का दारो मदार है। ढूंढते तभी देखते हैं कि वो शराबी शहजादा इधर उधर ढूंढ रहा है, कुछ चीज तलाश कर रहा है, ढूंढते हुए आ रहा है। अब्दुल्ला की नजर जैसी पड़ी, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक उसकी तरफ दौड़ते हैं और उसने भी हजरत अब्दुल्ला को देखा, वो भी दौड़ते हुए आता है। इससे पहले कि हजरत अब्दुल्ला उसके हाथ को बोसा ले, उससे मुसाफा करे, वो अब्दुल्ला से लिपटता रोते हुए कहता है, आए अब्दुल्ला इब्न मुबारक, आपको रसूलुल्लाह का वास्ता मुझे माफ फरमा दीजिए। हजरत अब्दुल्ला बड़े मुताज्जिब हुए, कहा शहजादे मैं तो तुझसे माफी के लिए निकला हूं, मुझे तू माफ कर दे अल्लाह के वास्ते, मुझसे बड़ी खता हो गई, मैंने तेरे नसब को नहीं देखा,
तेरे एहतराम को नहीं देखा, मैंने तेरे आमाल को देखा, तेरे बातिन को नहीं देखा। तो खानदान नबुव्वत का चश्म चिराग है, मुझसे बड़ी खता हुई, शहजादे अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दे। शहजादा कहता है अब्दुल्ला पहले आप मुझे माफ़ कीजिए। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते शहजादे आप पहले माफ़ कीजिए और फिर ये बताइए कि मैं आपको किस बात पे माफ़ करूं, दिल तो मैंने आपका दुखाया है। शहजादा कहता है अब्दुल्ला सुनिए, आपने तो उतना ही ख्वाब देखा, कसम खुदा की वो ख्वाब शुरू से ता इंतहा मैं पूरा देख रहा था। मैंने ख्वाब में ये देखा कि आप रसूलुल्लाह को मना रहे थे, रसूलुल्लाह की दस्तबोसी करना चाह रहे थे, मगर सरकार अपने रुख को फेर रहे थे। उसके बाद रसूलुल्लाह ने कहा जाओ मेरे शहजादे से माफ़ी मांगो, मगर उसके बाद का मंजर जो मैंने देखा वो ये कि मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ, मैंने चाहा कि नाना जद्दे करीम के हाथ को बोसा दूं, नबी ने मुझसे भी रुख फेर लिया और इरशाद फरमाया अरे मेरे साहबजादे तू मेरा खानदान का फर्द कहलाता है और शराब पीता है, गुनाह करता है। अगर तू ये काम ना करता तो आज अब्दुल्ला जैसे को तुझे कहने की गुंजाइश ना होती। जा उस वक्त तक मैं तुझसे राजी ना होऊंगा जब तक तो अब्दुल्ला से माफी नहीं मांगेगा। मेरी भी रसूलुल्लाह की रजा आपकी माफी पर मौकूफ है। दोनों एक दूसरे को माफ़ करते हैं और उसके बाद वो शराबी अब्दुल्ला के हाथ पर वो शहजादा तौबा करता है, रहत करता है कि आज से मैं शराब नहीं पीऊँगा। यानी ये हदीस ये रिवायत हमें क्या तलकीन करती है? तलकीन ये करती है कि सादात को चाहिए कि अपने गैर सादात को, हम जैसों को अपने से छोटा समझ के शफकत करे, और हमें चाहिए कि हम सादात को अपना आका और सरदार समझ के उनसे मोहब्बत करें, उनकी इज्जत करें। इस्लाम बैलेंसिंग का मज़हब है और जब तक ये बैलेंस हमारे बीच नहीं आएगा हमारी कौम तरक्की नहीं कर सकती है। तो इस्लाम ये हमें तालीम देता है। वक्त काफ़ी हो गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मालिक कायनात हमें सादात की ताज़ीम व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए।